Hello everyone, welcome to my channel once more. So in this video, I'm going to discuss class 7 NCERT mathematics exercise 2.2 onwards basically, because till exercise 2.1 I've already made the videos of chapter 1, complete chapter 1 and exercise 2.1. Now I'm going to start from exercise 2.2 and I'll give you an idea like how to solve the questions of chapter 2 from starting from exercise 2.2. So let's have a look over here. So this is exercise 2.2. You may look here. So what this question number 1 is saying basically, which of the drawings A to D show, means this first part is 2 multiplied by 1 by 5. तो इसको जो है इन चारों में से, इन चारों ड्राइंग में से कौन सा रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है इस फर्स्ट पार्ट के लिए, दैट मीन्स. सो हाउ वी आर गोइंग टू चेक दिस पार्ट, बेसिकली वी विल सी द फ्रैक्शन. So the fraction is 1 upon 5. So in which part basically 1 upon 5 is showing? If you check this A part, it's 2 upon 3. 2 are shaded out of 3. It's 1 upon 2. It's 1 upon 4. Yes, you can say it's 1 upon 5 because one part is shaded, one part is shaded out of 5 parts. So we can say this is 1 upon 5. Now how many 1 upon 5 they are saying? They are saying 2. So do we have 2 1 upon 5 shaded parts? Yes, 1, 2. So that means this D part is the representation of this first option. Similarly, second option is 1 by 2. So 1 by 2 we can see here and they are saying 2. So they are 2 only. So this answer would be B. This is D. Third part is 2 by 3. So 2 by 3 you may check here and they are saying 3. So they are 3. 1, 2, 3. So this is A part and this would be the remaining C. So you may check 1 by 4 and 3 parts of 3 pictures of it. So this would be C part. So like this you have to just check out which one is representing the correct picture. So some pictures, second question is some pictures A to C. So few pictures are given, A to C are given below. Tell which of them show. So now you have to do the same thing. 3 1 by 5 ones. So 1 by 5 के 3 कहाँ पर है? Here you may check out और उसका आंसर निकलेगा 3 by 5. So you can check 3 by 5 is the answer of this, right? So this is C. Similarly, second part you will do 2 multiplied by 1 by 3. So 1 by 3 के 2 parts. 1 by 3 के 2 parts you may check here and the answer would be 2 by 3. Answer is 2 by 3. So this is A and the remaining would be this. Okay, so this way you have to just check out which one is representing the correct picture. Now let's move to the next one. Next question, basically third question. Let me just erase it. Okay, let's see question number 3 now. Multiply and reduce to lowest form. So I'll just solve few parts over here. So you will get an idea how to solve. So let's see the first part only. आपको मल्टीप्लाई करना है और लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है, ठीक है? मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म. सो इन दिस फर्स्ट पार्ट यू मे चेक 7 multiplied by 355. So 7 को we will multiply with the numerator because 7 is written in the numerator only. Why I'm saying numerator? Because 7 को we can write as 7 upon 1, right? So this 7 is the numerator. So numerators and numerator we can multiply. So 7 multiplied by 3 would be 21 upon 5. Now we can't cancel them, so this would be the answer of the first part. If we can cancel, we would cancel it further to reduce it to the lowest form. Now I'll just show you one of the part in which we can reduce basically. So let's see the sixth part now. Okay, so 5 by 2 multiplied by 6. 5 6 are 30. There are two ways of doing it basically. 5 6 are 30. This is the one way upon 2. Now can we reduce it? Yes, we can reduce it. 2 ones are 2. And if you divide 30 by 2, you will get 15. So this answer would be 15, the answer of sixth part. This is one way of doing, like पहले आपने multiply कर दिया और फिर आप उसको lowest term पे कर रहे हैं. Another way of doing is, another way I'm doing in the green color. See, 6 in the numerator, 2 is in the denominator. तो हम यहाँ से भी cancel कर सकते हैं, like 2 ones are 2, 2 3s are 6. तो अब आप देखो 5 3s are 15 upon 1 बच गया, तो answer 15 ही आया है. So any of the way you may opt out over here, but you have to write the answer in the lowest form only. Okay, so this is about question number 3. You have to do like this. Let's move to question number 4 now. Okay, so just a second. Let's see question number 4. Shade करना है आपको out of these pictures. First part के बारे में बात कर रहे हैं. So first part they are saying half of the circles given in box A, means box A ये वाला है, इसमें जो circles दिए हैं उसका half आपको shade करना है.
So half of the circles, of means multiply, okay? Half of the circles in the box. So कितने circles है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So half of 12. So now you can cancel it. 2 ones are 2, 2 6 are 12. That means 6 circles basically you have to shade. So you will shade the 6 circles. Any 6 circles you may shade. It's up to you, like which one you want to. So any 6 circles you have to shade. That would be the answer of the first part. Similarly, I'll just check out this third part only. The second part would remain same. Now in the third part, what they're saying, 3 by 5 of means multiply squares in box C. So box C में कितने squares है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So 3 by 5 of 15. Now cancel it out. 5 ones are 5, 5 3s are 15. Now 3 3s are 9. 9 upon 1 is 9 only. So basically 9 squares you have to shade. Any 9 squares you may shade over here. So this would be the answer. Okay. Now let's move to the next question number 5. Question 5 is saying find. What you have to find? Let's see A part, first part. Half of. Of I just told you, of means multiply. Half of 24. Now you have to cancel. So I just told you how to cancel. 2 ones are 2, 2 ones are 2, 2 twos are 4. So this is 12. So this is the answer of the first part, 12. Okay, half of 46. Second part is half of 46. So same way you will write half of 46 and then cancel it. Okay, so 23 would be the answer of the second part. Then you will cancel 46 by 2. Similarly, B part is given. Let me just erase it quickly. Then I'll elaborate this B part. Okay, B part is same. 2 by 3 of. Instead of half, you have to do 2 by 3. So 2 by 3 of. Let's see second part of it now. 2 by 3 of 27. Like this. Okay, now you have to cancel it out. 3 ones are 3, 3 nines are 27. Now we are left with 2 multiplied by 9 upon 1. So that is 18 only. So answer of this second part is 18. Okay, so I hope this is clear how to do basically. Similarly, you will do the C part and D part. Let's move to question number 6 now. Okay, let's see question number 6. What they are saying basically, multiply and express as a mixed fraction. तो आपको मल्टीप्लाई करना है और फिर आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में ही रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है. ठीक है, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस मिक्स फ्रैक्शन. तो पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेना है. 5 5 से 25 प्लस 1 26 अपॉन 5. नाउ मल्टीप्लाई देम. हम यहाँ से 3 और 5 को तो कैंसिल कर ही नहीं सकते, राइट? तो हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 और 26 को. So when we will multiply 3 and 26, you can multiply like this. 3 6 are 18, 3 2s are 6 plus 1 7. So it is 26 multiplied by 3 is 78 divided by 5. But they are asking the answer in a form of mixed fraction, expressed as a mixed fraction. So आपको 78 को 5 से divide करना पड़ेगा. 5 ones are 5, 2 remaining, 8 नीचे लाना है. 5 5s are 25, 3 remaining. Okay, so how we can write in the mixed fraction? Quotient जो है वो हमारा whole number होता है, remainder numerator में और divisor denominator में. So this would be the answer of this A part. Similarly आपको बाकी सारे करने हैं, बस ये ध्यान देना है wherever the mixed fraction is given उसको improper में convert करके multiply कर दो. जो भी fraction आएगी अब improper उसको mixed fraction में convert कर देना, because the answer they are asking in the form of mixed fraction. Okay, let's move to question number 7 now. Question number 7 is 1 by 2 of. It's similar like this question, fifth question, but यहाँ पे change क्या है? Here the whole number was given and here the mixed fraction is given. So let's see how we are going to solve it. So I'm just going to solve this first part. Half of means multiply. Half of what? 2 3 by 4. This basically. So half of 2 3 by 4 को how we can write? 4 to the 8 plus 3 11. 11 upon 4, right? Now can we cancel 2 and 11? No, we can't cancel. Can we cancel 11 and 4? No. So we'll just simply multiply. 1 11s are 11, 2 4s are 8. So this would be the answer of 8. Now don't leave the answer like this, convert it into mixed fraction form. So 11 को 8 से करेंगे, 8 1s are 8 and 3 you will get as remainder.
So quotient, remainder upon divisor. So that would be the answer of this 7th question, A part का first part. Okay. I hope this is clear how to do. कुछ नहीं करना, just mixed fraction को improper में convert करना, उसके साथ जो भी पूछा, जो भी करने को बोला है मल्टीप्लाई के साथ, जैसे यहाँ पर 5/8 को मल्टीप्लाई करने बोला है, यहाँ पर 1/2 को, तो जो भी बोला इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है. ऑलराइट, सो लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज नाउ. So last question is, Vidya and Pratap went for a picnic. Their mother gave them a water bag. So विद्या और प्रताप जो है पिकनिक पे गए हैं, उनकी मदर ने उनको एक वाटर बैग दिया है that contains 5 liters of water. तो उस बैग में जो है 5 लीटर टोटल पानी आ सकता है. पिकनिक पे गए हैं, बैग लेके गए हैं, वाटर बैग जिसमें 5 लीटर आ सकता है. विद्या consumed 2/5 of the water. What does it mean? How you are going to write basically? First of all, you will write like total capacity of water bag. I'm writing in the next line of water bag equals to 5 liters. Okay, L is liter basically. So total capacity लिख देंगे आप. Then you will write like Vidya consumed equals to, कितना कंज्यूम किया है विद्या ने? विद्या consumed 2/5 of the water. So 2/5 of water कितना था? 5 liter. So 2/5 of 5 liter Vidya is consuming. Let's solve it. 2/5 of means multiply 5. So 5 से 5 cancel हो जाएगा. I'm cancelling with another pen. 5 ones are 5, 5 ones are 5. So this would be 2 liters basically. So विद्या ने कितना कंज्यूम किया? 2 liters. Now what they are asking, Pratap consumed the remaining water. So now what you will write, Pratap consumed, I'm just writing this 2 liter over here only so that the space I will get. Okay, now what you are going to do, you will write Pratap consumed. Okay, प्रताप ने कितना कंज्यूम किया? प्रताप ने रिमेनिंग कंज्यूम किया. सो व्हेन यू हैव टू फाइंड रिमेनिंग ना, तो जितना जो है विद्या ने कंज्यूम किया है वो टोटल में से हम माइनस कर देंगे. तो कंप्लीट कैपेसिटी जो होल कैपेसिटी है वो 1 होती है. तो हमेशा हम 1 से माइनस करेंगे फ्रैक्शन को, क्योंकि होल को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं. तो प्रताप ने 1 माइनस और विद्या ने कितना कंज्यूम किया था? 2/5. या तो आप ऐसे कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 3/5. एलसीएम जब आप लेंगे तो प्रताप ने कितना कंज्यूम किया? 3/5. क्यों निकाला मैंने फ्रैक्शन फॉर्म पर ही? क्योंकि अगर आप सेकंड पार्ट देखें, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी पूछा गया है, कितना फ्रैक्शन प्रताप ने ड्रिंक किया, बेसिकली कंज्यूम किया. तो 3/5 जो है उसने कंज्यूम किया, 3/5 ऑफ द वाटर. तो फ्रैक्शन में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने आंसर 1 में से फ्रैक्शन को ही माइनस किया. अगर यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं पूछा जाता हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, तो आपको क्या करना है? टोटल था 5 लीटर, विद्या ने पी लिया 2 लीटर, तो बचा कितना? 3 लीटर. तो उस प्रताप ने 3 लीटर कंज्यूम किया है. अगर फ्रैक्शन में नहीं पूछा गया होता, तो फ्रैक्शन में पूछा इसलिए 1 में से जितना विद्या ने फ्रैक्शन कंज्यूम की थी वो माइनस कर देंगे, तो प्रताप की फ्रैक्शन निकल आएगी. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है. ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स 2.3. लेट्स सी एक्सरसाइज 2.3. सेम थिंग है जो अभी मैंने आपको बताई थी. फाइंड 1/4 ऑफ. 1/4 ऑफ अभी मैंने बताया. 1/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई किसका करना है? ए पार्ट में 1/4 का. So we can't cancel, we'll just simply multiply. 1 1 is 1, 4 4 is 16. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. Similarly 1/4 of 3/5 करना है, तो इसकी जगह पर 3/5 आ जाएगा. सी पार्ट में 4/3 आ जाएगा. लेट्स सी सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट का सी पार्ट देख लेते हैं. तो 1/7 of means multiply. सी पार्ट is 3/10. We can't cancel them, so we'll simply multiply. 3 1s are 3, 7 10s are 70. So this would be the answer of this second question, second part, C part. ठीक है, तो ऐसे हमें करना है, कुछ नहीं करना. जब भी आपको ये ऑफ वर्ड दिखे आपको मल्टीप्लाई करना है बेसिकली. ओके, so let's move to the next question. Question number 2. Just a second. Okay.
ना क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म। वही सेम चीज है, अगर लोएस्ट टर्म पे पॉसिबल है तो ही लोएस्ट टर्म पे करना है, मींस काट सकते हैं तो लोएस्ट टर्म पे करना है, नहीं तो वैसे ही छोड़ देना है। सो लेट्स सी एनीवन, सो विल सी फर्स्ट पार्ट बिकॉज ये मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म पे है। तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाय, इसको कैसे लिखेंगे, 2 3 6 प्लस 2 8, 8/3। काट नहीं सकते, देखो ऊपर नीचे नहीं काट पा रहा, राइट। 2 और 8 को मत काट देना बिकॉज दे आर इन न्यूमरेटर, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ही काट सकते हैं मल्टीप्लाई में। तो इट वुड बी 16/9, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इफ वी कैन कैंसिल तो उसको कैंसिल करना है, ठीक है। बट 16/9 जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखना है। तो व्हेन यू विल डिवाइड इट यू विल गेट 9 1 9, 7 रिमाइंडर बचेगा। सो क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, so this would be the answer of this first part. Similarly, अगर मैं आपसे बात करूं जिसको हम लोएस्ट टर्म पे कर सकते हैं, तो let's check out which one we can cancel. Okay, third part we will see here. ठीक है, so let's see the third part solution. 3/8 multiplied by 6/4. एक तरीका तो है आप यहीं पर ही काट दो, अगर आप इधर देखो तो 6 and 8 we can cancel with the table of 2, या फिर 6 और 4 को किसी एक को कैंसिल कर सकते हैं। एक तरीका तो ये, दूसरा क्या है, मल्टीप्लाई देम, 3 6 18 एंड 8 4 32। अब उसको काट दो, ठीक है। तो अब हम 2 से काट देते हैं, 2 9 18 एंड 2 1 2 एंड 2 6 12, 9/16। तो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, लोएस्ट टर्म पे कन्वर्ट करना है। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये इसको हम ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, अगर इम्प्रॉपर होती है तो मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म पे करके छोड़ना है। लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन नाउ ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.3। तो थर्ड क्वेश्चन इज फॉर द फ्रैक्शंस गिवन बिलो। हमें यहाँ पर ये फ्रैक्शंस दी हुई है, 7 पार्ट्स आर गिवन। हमें ये 3 पार्ट्स चेक करने हैं। व्हाट इज फर्स्ट पार्ट सेइंग, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द प्रोडक्ट टू लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। मतलब अभी जो मैंने बताया, मल्टीप्लाई करना है और अगर लोएस्ट फॉर्म पे कर सकते हैं तो उसको लोएस्ट फॉर्म पे कन्वर्ट करना है। फिर बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, टेल वेदर द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो हमें फिर जो आंसर आया उसको बताना है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर। अगर नोमिनेटर छोटा है तो वो प्रॉपर होगा, अगर नोमिनेटर बड़ा है तो वो इम्प्रॉपर होगा, ठीक है। ओके, सी पार्ट में क्या कह रहे हैं, इफ द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इज इम्प्रॉपर। अगर इम्प्रॉपर आती है मतलब नोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो उसको आपको नेक्स्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जो मैंने अभी सेकंड क्वेश्चन में स्टेप्स बोले थे वही सेम चीज लिखी हुई है। तो चलो एक पार्ट देख लेते हैं। तो आई एम डूइंग दिस पार्ट। तो देखो 6 2/5, पहले इसको इम्प्रॉपर में कर लेते हैं। 5 6 30 प्लस 2 32, 32/5 मल्टीप्लाइड बाय 7/9। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 32 7 7 2 14 और ये 224 मिल जाएगा। आप ऐसे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। 5 9 45। अब इसको क्या हम कट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देखो ये तो सिर्फ 5 से कटेगा और ये कट ही नहीं सकता। 3 से या 5 से काट सकते हैं 45 को, है ना। और ऊपर वाला नहीं कट रहा, वो इवन नंबर है, तो इसको हमें लोएस्ट टर्म पे हम इतना ही कर सकते हैं, करेक्ट। तो अब ये फर्स्ट पार्ट का आंसर तो हमारा निकल गया, मल्टीप्लाई और रिड्यूस द प्रोडक्ट टू लोएस्ट फॉर्म, क्योंकि इसके फर्दर हम लोएस्ट फॉर्म नहीं कर सकते, तो इतना ही रहेगा। सेकंड पार्ट में बताना है प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। सो द नोमिनेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर, देखो ऊपर वाला बड़ा है तो दिस इज इम्प्रॉपर, ठीक है। तो ये हो गया इम्प्रॉपर हमारी। थर्ड पार्ट में क्या बोला है, अगर इम्प्रॉपर है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है, तो इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में करना रहेगा। सो नाउ वी विल डिवाइड इट बेसिकली 45 से। तो 45 1 45 हमें ऐसे मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। सो इफ यू जस्ट चेक 45 4 तो यू विल गेट 4 5 20, 4 4 16 और प्लस 2 18, 180। और 45 5 भी करके देख लेते हैं। 45 5 करके देख लेते हैं, बड़ा आ रहा है 224 से या छोटा। 5 5 25, 5 4 20 और प्लस 2 225 बड़ा आ गया, राइट। तो हमें क्या करना है, 45 4 करना है। 45 4 180, 4 बचा, 12 में से 8 गए, 4 बचा, 1 में से 1 गया 0। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा 4, इसको इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। हमेशा यही मेथड फॉलो करना है, क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये थर्ड क्वेश्चन करना है। पहले सॉल्व करेंगे, लोएस्ट फॉर्म पे हो सकता है तो लोएस्ट फॉर्म पे करना है। अगर नोमिनेटर
बड़ा है तो वो इम्प्रॉपर है, न्यूमरेटर छोटा है तो प्रॉपर है, अगर इम्प्रॉपर है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ तो आपको स्पेसिफाई किया गया है, स्पेसिफाई है तो कुछ छोड़ना नहीं है, सारे स्टेप्स होने चाहिए। बाकी क्वेश्चंस में भी आई वुड सजेस्ट कि आप इतना करो ही, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग व्हिच इज ग्रेटर, कौन सा ग्रेटर है, ये वाला या फिर और लिखा है देखो, या फिर ये वाला, ठीक है। तो हम दोनों को सॉल्व करके देख लेते हैं, जो भी आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग वी विल डिसाइड व्हिच इज ग्रेटर। सो 2/7 ऑफ 3/4, so this would be 2 4 को कैंसिल कर सकते हैं या बाद में कैंसिल कर देना, मैं अभी कैंसिल कर देती हूँ। 2 1 2, 2 2 4, तो ये बचा हमारे पास 3/14। अच्छा नेक्स्ट वन इज 3/5 ऑफ 5/8। तो यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, यस वी कैन कैंसिल दीज 5, ओके 5 1 5, 5 1 5, so we would be left with 3/8। now they are अनलाइक फ्रैक्शंस बेसिकली, ठीक है। तो इसको आपको लाइक फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। तो जब हम लाइक फ्रैक्शन में करेंगे तो हमें सेम डिनोमिनेटर देखना पड़ता है, बट हम यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं, दैट थिंग इज लाइक कि जो 3/14 और 3/8 जो हमारा आंसर आ रहा है, इन बोथ द फ्रैक्शंस बेसिकली वी आर गेटिंग द सेम न्यूमरेटर, है ना, न्यूमरेटर सेम है हमारा यहाँ पर। तो जब नोमिनेटर सेम होता है तो हमें क्या करना होता है, ध्यान से सुनना। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, नोमिनेटर सेम है, तो उस केस में जो छोटा डिनोमिनेटर होगा, आई एम रिपीटिंग अगेन, जब नोमिनेटर सेम है फ्रैक्शन में, तो जो छोटा डिनोमिनेटर होगा एक्चुअल में वो बड़ा फ्रैक्शन है। सो 3/8 इज ग्रेटर देन 3/14। ठीक है, बात समझ आई? दोबारा बोल रही हूँ, जब आपको नोमिनेटर सेम मिलेंगे तो जिस भी फ्रैक्शन में छोटा डिनोमिनेटर है वो एक्चुअल में वो उसका आंसर बड़ा होगा। कैसे? अगर आप 3 और 14 को डिवाइड करके देखें, ठीक है, मतलब 14 से 3 को डिवाइड करें तो 0 डेसिमल आएगा, तो इसको जब आप करेंगे तो 14 2 जा 28, 2 बच गया। फिर आप फर्दर करेंगे 14 1 जा तो 0.21 समथिंग आया। और 3/8 जब आप करके देखेंगे 8 से 3 को, तो 8 3 जा 24, देखो यहीं पर ही आपको पता चल गया 0.3 और ये 0.2, तो 0.3 बड़ा है ना। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, ये सब कुछ करके दिखाने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको नोमिनेटर सेम मिले किसी फ्रैक्शन में, तो छोटा डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन एक्चुअल में बड़ा होता है, ठीक है। तो चलो सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं इसका, व्हाट आंसर वी आर गेटिंग ओवर देयर। तो सेकंड पार्ट में इट्स गिवन हाफ ऑफ 6/7, so 6 और 2 को we can cancel, 2 1s are 2, 2 3s are 6, so this would be 3/7। okay, now next is 2/3 of 3/7, so we will cancel 3 again, 3 1s are 3 1s are, so we would be left with 2/7। अच्छा ये तो लाइक फ्रैक्शन ही आ गई, डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो कोई फिक्र नहीं है, जिसका नोमिनेटर बड़ा है वही बड़ा होगा, तो इस केस में ये बड़ा है इससे, क्योंकि 3 बड़ा है, राइट। तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जब डिनोमिनेटर सेम है इस तरह से, तब तो जो नोमिनेटर एक्चुअल में बड़ा है वही हमारा बड़ा होगा, बट जब नोमिनेटर सेम है इस तरह से, इस केस में डिनोमिनेटर सेम था तो जो नोमिनेटर बड़ा है वही बड़ा होगा, बट जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, नोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर जो छोटा है वो एक्चुअल में बड़ा होगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, बस आपको ये ध्यान देना है। लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन नाउ। फिफ्थ क्वेश्चन इज सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो। तो एक रो में बेसिकली जैसे एक रो है उसमें सैली ने 4 प्लांट्स सैपलिंग किए, ठीक है। तो 1 2 3 4 प्लांट सैपलिंग किए। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स, एडजेसेंट मींस एक के साथ एक, ही जैसे ये दोनों एडजेसेंट है या फिर ये दोनों एडजेसेंट है या फिर ये दोनों एडजेसेंट है, ठीक है, एडजेसेंट। तो 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स के बीच का डिस्टेंस है 3/4, तो ये 3/4, this one also 3/4 meter, it's in meter, and this one also 3/4 meter। तो 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स के बीच का डिस्टेंस इज 3/4 मीटर। व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। तो फर्स्ट सैपलिंग इज दिस
लास्ट सैपलिंग इज दिस, तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, दैट मीन्स 3/4 + 3/4 + 3/4। ठीक है, आप 3 बार ऐसे ऐड भी कर सकते हैं, और अदरवाइज सेम चीज हम ऐड कर रहे हैं तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, so this would be 9/4 meter. So this would be the answer of this question number 5, but it's a improper fraction. तो improper है तो इसको mixed में convert करना है, and you will get the answer of this as 2 1/4 meter. So ये हमारा 5th question का आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखोगे कैसे? Total saplings planted by Sally equals to 4. Then you will write distance between two adjacent saplings. क्वेश्चन सही, फर्स्ट लाइन मैंने बोली थी टोटल सैपलिंग्स प्लांटेड बाय सैली इक्वल्स टू 4, या फिर आप इधर से ऐसे भी लिख सकते हैं सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स। ठीक है, अब उसके बाद लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग्स इक्वल्स टू, इसके बदले इक्वल्स टू, इज मींस इक्वल्स टू, बेसिकली इक्वल्स टू 3/4 मीटर। नाउ यू विल राइट distance between first and the last sapling equals to this. You are going to perform this thing. ठीक है, और ये फिगर बना देना वहां पर। Okay, now let's move to the next question number 6. Question number 6 is लिपिका reads a book for 1 3/4 hours every day. मतलब क्या हुआ, लिपिका एक बुक रीड करती है इतने घंटे के लिए हर दिन, मतलब एक दिन में वो इतने घंटे के लिए एक बुक रीड करती है, कितने घंटे के लिए? 7/4 आवर्स के लिए। इसको मैंने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया। तो 7/4 आवर्स हर दिन इतनी पढ़ाई वो करती है, इतनी देर के लिए वो बुक रीड करती है। नाउ व्हाट द अनदर लाइन इज सेइंग, शी रीड्स द एंटायर बुक, पूरी बुक जो है उसने 6 डेज में पढ़ी। एक दिन में इतने घंटे के लिए पढ़ती है तो 6 डेज में कितना घंटा पढ़ी वो? हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। तो वही चीज पूछी गई है, एक दिन में इतना घंटा पढ़ रही है तो 6 दिन में कितना घंटा पढ़ी, हाउ मेनी आवर्स। ठीक है, सो हाउ यू आर गोइंग टू राइट, लिपिका रीड्स अ बुक, लिपिका रीड्स अ बुक in 1 day equals to 1 3/4 hours, then convert it into mixed improper fraction. Sorry, 1 3/4 hours, and that is equals to 7/4 hours. लिपिका reads a book in 1 day, इतने घंटे के लिए। ठीक है, now number of hours required to come, इसके बाद हम ये वाली लाइन लिख देंगे। ठीक है, सेम, लिपिका reads the entire book in 6 days, then number of hours required by her, how many की जगह आ जाएगा number of hours required by her to read the book equals to। अच्छा, एक दिन में मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक दिन में आप 2 घंटे पढ़ाई करते हैं, सपोज एक दिन में 2 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो 6 दिन में कितने घंटे पढ़ाई करेंगे? 12 घंटे, राइट। कैसे निकाला? मल्टीप्लाई करके। तो एक दिन में वो इतना घंटा पढ़ रही है तो 6 दिन में कितना पढ़ेगी? 6 मल्टीप्लाइड बाय दिस, करेक्ट, और ये हो जाएगा 42/4। अब इसको हमें कैंसिल आउट करना है लोएस्ट टर्म पे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 21/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे और वो हमारा आ जाएगा 10 1/2 आवर्स। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं दोबारा बता देती हूँ हाउ टू राइट, लिपिका रीड्स अ बुक, आप यहाँ से क्वेश्चन में से भी पूरा पूरा सीधा सीधा लिख सकते हैं। इफ यू डोंट वांट टू राइट लाइक दिस, आपको बहुत इजी तरीका मैं बता देती हूँ। व्हाट यू कैन डू ना, ये लाइन लिखेंगे, दिस इज गिवन, देन इन द नेक्स्ट लाइन यू विल राइट दिस, इन द नेक्स्ट लाइन यू विल राइट नंबर ऑफ आवर्स required to read the book equals to 6 multiplied by this, then 6 multiplied by this, then answer would come, convert into fraction form, then convert into mixed fraction form. Okay, so this way you have to do. Now let's move to the 7th question now. 7th question is, a car runs 16 km using 1 liter of petrol. तो एक कार है 1 लीटर पेट्रोल की मदद से 16 किलोमीटर चल पाती है। ठीक है, 1 लीटर में
16 किलोमीटर। अभी समझना है पहले, फिर मैं बताऊंगी कैसे लिखना है ना। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग इतना लीटर पेट्रोल। अच्छा, मैं आपको पहले एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज 1 लीटर में आप 2 किलोमीटर चल पा रहे हैं, ठीक है। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल से आप 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर पा रहे हैं, तो 3 लीटर पेट्रोल में कितना कर पाएंगे। आई एम सेइंग 1 लीटर में आप 2 किलोमीटर जा पा रहे हैं, तो 3 लीटर में कितना जा पाएंगे, 6 किलोमीटर। करेक्ट। कैसे निकाला, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके। सेम थिंग हमें यहाँ पर करनी है। ये एग्जाम्पल था, ये लिखना नहीं है। ओके, सो अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो कितना डिस्टेंस उसने इतने लीटर ऑफ पेट्रोल से कवर किया। तो 1 लीटर में इतना किया, सो 2 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में कितना करेगा, 16 मल्टीप्लाइड बाय दिस। और ये तो आपको सॉल्व करना आता ही है, राइट। तो अब लिखेंगे कैसे, जस्ट सी how to write this. You will write like this: distance traveled by car, distance, because 16 kilometer is distance, huh? Distance traveled by car in 1 liter, yeah, using 1 liter of petrol. Instead of in, we will write using 1 liter. Using 1 liter of petrol equals to 16 kilometer. ठीक है। देन अगेन द सेम लाइन वी विल राइट, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार यूजिंग 1 लीटर की जगह आ जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में 2 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 3/4 लीटर, सॉरी 2 3/4। अच्छा, ये हम निकाल क्या रहे हैं, किलोमीटर निकाल रहे हैं, राइट। सो किलोमीटर। ओके, तो अब आपको यहाँ पर डिस्टेंस पूछा गया है, देखो हाउ मच डिस्टेंस, तो इसलिए हम डिस्टेंस की टर्म में ही बात कर रहे हैं। तो इसको आप जब आप सॉल्व करेंगे तो हाउ यू विल डू, पहले इसमें फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। हम सॉल्विंग हियर 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 8 + 3 11। अब हम इसको कट कर देते हैं, 4 1 4 4 4 16, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 11 इज 44। So your answer would be 44 kilometer. ठीक है, समझ आ गया। Distance traveled by car using 1 liter of petrol equals to 16 kilometer. Distance traveled by car using 2 3/4 liters of petrol equals to 16 multiplied by 2 3/4 kilometer. तो फिर इसको सॉल्व करके ये आंसर निकाल देना है। Okay, let's see the last question of this exercise as well. Last question of this exercise, question number 8, A part. प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स। ये बॉक्स दिया है, यहाँ पर आपको नंबर सर्च करना है कि क्या आएगा। कैसे ढूंढेंगे, 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10/30 आ जाए। तो नोमिनेटर नोमिनेटर देखो, 2 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 10 आ जाए, 5 से। कैसे निकाल सकते हैं, 10 को 2 से डिवाइड करके, ठीक है। अच्छा, 3 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 30 आ जाए, 10 से। तो आंसर क्या हो गया, 5/10। ठीक है, ऐसे इसको करना है। The simplest form of the number obtained is, simplest form क्या होगी, इसको कैंसिल कर दो। simplest form means lowest term, 5 1 5 5 2 10, तो simplest form is 1/2। सेम बी पार्ट करना है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए। तो आपको अगर ऐसे नहीं ध्यान आ रहा है किससे मल्टीप्लाई करें, तो आपको ये वाला नंबर और ये वाला नंबर डिवाइड कर देना है। मीन्स 24 को 3 से डिवाइड करोगे तो वो आंसर मिल जाएगा 8। ऐसे ही 75 को 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर मिल जाएगा 15। तो ये हमारा आंसर हो गया 8/15। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यही रहेगा, क्योंकि इसको फर्दर हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो सिंपलेस्ट फॉर्म वुड बी दिस ओनली। सो दिस इज अबाउट एक्सरसाइज 2.3। लेट्स मूव टू 2.4 नाउ। एक्सरसाइज 2.4, फाइंड, डिवाइड करना है अब आपको, ठीक है। तो डिवाइड कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। मैं फर्स्ट पार्ट डिस्कस करती हूँ। 12 डिवाइडेड बाय 3/4। तो आपको ना क्या करना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। टेकिंग अगेन, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं, फर्स्ट नंबर जो है एग्जैक्टली सेम रहता है, डिवाइड बन जाता है मल्टीप्लाई, और डिवाइड के बाद जो भी नंबर लिखा होगा उसका हमें रेसिप्रोकल करना है। आई एम टेकिंग अगेन, whatever number is written after the divide symbol we will do its reciprocal। रेसिप्रोकल मतलब उसको उल्टा करके लिख देंगे। तो 3/4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3।
तो ये डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, जैसे ही मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हुआ उसके बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। पहले वाला नहीं करना, बाद वाला करना है हमेशा। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4/3 को तो आपको सॉल्व करना आता ही है, राइट। 3 1 3, 3 4 12, 4 4 8, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, सॉरी, I added it actually, 4 4 16 basically, so sorry। तो 4 4 16, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 16। 12 डिवाइडेड बाय 3/4 करेंगे तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, 3/4 का रेसिप्रोकल करेंगे, 4/3 आएगा। अब तो आपको सॉल्व करना आता ही है, 3 और 12 को कैंसिल कर दिया, बच गया 4 मल्टीप्लाई बाय 4 और 4 4 होता है 16, तो ये इसका आंसर हो गया। एक और पार्ट देख लेते हैं, लेट्स सी दिस 6th पार्ट। ओके, तो 6th पार्ट में क्या गिवन है हमें, 5 डिवाइडेड बाय 3 4/7। तो सबसे पहले तो हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, 5 डिवाइडेड बाय 3 4/7। इसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, डोंट बी हरी, क्योंकि अगर आप ऐसे रेसिप्रोकल करने जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कैसे करेंगे, राइट। तो इसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, 3 7 21 प्लस 4 25/7। अब हम क्या है, अब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। सो 5 एग्जैक्टली सेम, पहला वाला नंबर सेम रहेगा, डिवाइड वुड बिकम मल्टीप्लाई and the reciprocal of it would be 7/25। reciprocal करना नहीं भूलना। now we can cancel them, 5 1 5, 5 5 25, so answer would be 7/5। so this would be the answer of this part। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। स्टिल कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। चलो अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो रेसिप्रोकल फाइंड करना है, अभी बताया मैंने, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करके लिख देना है, राइट। तो रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इज 7/3, 5/8 इज 8/5। इस तरह सबको सिर्फ रेसिप्रोकल करना है। 1/8 वुड बी 8/1 एंड दैट इज 8 ओनली। ठीक है, तो इस तरह से इसका हो जाएगा 11। सो यू जस्ट हैव टू reciprocal it, find the reciprocal। now classify the reciprocal as proper fraction, improper fraction या whole number। तो proper का केस क्या है, when numerator is shorter, smaller than the denominator। तो पहले जो मैंने 4 पार्ट करे उसमें देख लेते हैं, प्रॉपर है इम्प्रॉपर है क्या है। तो फर्स्ट वाले में नोमिनेटर बड़ा है, सो व्हेन नोमिनेटर इज ग्रेटर तो वो कौन सी फ्रैक्शन होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो दिस इज इम्प्रॉपर। सेकंड पार्ट में भी नोमिनेटर बड़ा है, राइट, दिस इज ऑल्सो इम्प्रॉपर। अच्छा, 6th पार्ट में वी आर गेटिंग द होल नंबर, तो ये हमारा 6th और 7th पार्ट जो है ये दोनों होल नंबर्स हैं। कोई ऐसा देखते हैं जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन आए, 4th पार्ट देखते हैं, ठीक है, विल सी दिस 4th पार्ट। 4th पार्ट का रेसिप्रोकल होगा 5/6, न्यूमरेटर छोटा है, दैट मींस दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपको बस रेसिप्रोकल करना है और फिर आंसर देना है कि जो आंसर आ रहा है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है या होल नंबर है। आंसर मतलब प्रॉपर इम्प्रॉपर और होल नंबर आंसर का बताना है, क्वेश्चन का नहीं बताना है। ठीक है, पहले रेसिप्रोकल करेंगे फिर उसको बताना है। देखो, क्लासिफाई द रेसिप्रोकल, तो जो रेसिप्रोकल करके आंसर आएगा उसको आपको बताना है कि दैट इज प्रॉपर, इम्प्रॉपर और होल नंबर। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड 7/3 डिवाइड बाय 2। सेम थिंग करेंगे, 7/3 को रेसिप्रोकल नहीं करना, जैसे कि मैंने पहले बोला, पहला नंबर सेम रहेगा, डिवाइड को बना देंगे मल्टीप्लाई, और दूसरा नंबर क्या है 2, और 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/2। क्यों, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, और 2/1 का रेसिप्रोकल हो गया 1/2, तो 1/2 ये 1 है बच्चा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 7/6, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ आया होगा। जब भी डिवाइड है तो उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और हमेशा उसके बाद वाले नंबर का ही रेसिप्रोकल करना। चलो एक और पार्ट देख लेते हैं इसका, we will see this part, 6th part। ओके, तो इसको पहले नेक्स्ट फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में करेंगे। 7 4 28, लेट मी इरेज दिस पार्ट। ओके, 7 4 28 plus 3 31, 31/7 divided by 7, this is the question basically। so 31/7 would remain same, divide would become multiply, 7 का रेसिप्रोकल इज 1/7। ठीक है, 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं, इसलिए उसका रेसिप्रोकल 1/7, so this is 31/49। so this would be the answer of this 6th part। कुछ डाउट नहीं होंगे, स्टिल है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना। ओके, नाउ वी विल सी द लास्ट क्वेश्चन। इसी तरह से करना है सेम,
जल्दी से फर्स्ट पार्ट करके बताओ क्या आंसर आएगा। पहला वाला फ्रैक्शन सेम रहेगा, दूसरे वाले का रेसिप्रोकल कर देना है और फिर उसको सॉल्व करना है क्विकली। डिवाइड के केस में बस आपको यही करना है, कन्वर्ट डिवाइड इनटू मल्टीप्लाई फॉर्म एंड देन डू द रेसिप्रोकल ऑफ द नेक्स्ट टर्म। चलो देखते हैं, 2/5 डिवाइड वुड बिकम मल्टीप्लाई और रेसिप्रोकल ऑफ दिस 1/2 वुड बी 2/1। नाउ 2 2 4/5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4/5। ठीक है, विल सी वन मोर, फिफ्थ पार्ट करेंगे, जल्दी से सॉल्व करो अपने आप से, फिर वी विल सी इट व्हाट वुड बी द आंसर। चलो देखते हैं, आई होप कईयों के आ भी गया होगा आंसर। 2 3 6 + 1 7, 7/2 डिवाइड बाय 8/3, ये क्वेश्चन है हमारा। जब भी मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन हो, पहले इम्प्रॉपर में उसको कन्वर्ट करके क्वेश्चन लिख दो। जल्दी बाजी नहीं करनी है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई में कन्वर्ट नहीं करना, पहले इम्प्रॉपर में करो, वर्शन वैसे ही लिखना है इम्प्रॉपर में, फिर उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। सो दिस वुड बी 7/2 डिवाइड वुड बिकम मल्टीप्लाई, 8/3 का रेसिप्रोकल इज 3/8। कुछ कट रहा है, नहीं दिख रहा, तो हम इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 21 और 2 8 16, तो इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ पार्ट का। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। स्टिल कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं। तो ये था अबाउट एक्सरसाइज 2.4। तो मैंने इस वीडियो में डिस्कस की है एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.3 एंड एक्सरसाइज 2.4. So in the next upcoming video, I'll discuss the remaining exercises of this chapter. So देखते रहिए और इसको कॉपी में अच्छे से सॉल्व कर लेना। ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल।